एनालिसिस का मतलब क्या था कि टू specify this type of system or different properties of system. So when we talk about the properties of system, so we say LTI systems, linear time invariant systems. तो उनके लिए properties क्या थी कि they are causal, non-causal, memoryless or with memory, invertible, non-invertible, stable or unstable. And we also said in time domain, we say LTI systems are characterized by their impulse response. Similarly, in frequency domain, we say LTI systems are characterized by their frequency response. Frequency response को हमने मुख्तलिफ नाम दिए थे पहले. We say it's also known as frequency response. It's also known as eigenvalue, and we also call it as a Fourier transform. Sometimes we'll call the same as system function gain. ठीक So in case of time domain, we say impulse response represents is the representation of LTI system, and in frequency domain, we say that frequency response represents the system. So if we know the frequency response, we can specify the type of system. If we know the impulse response, we can also specify the different properties of systems. So if you want to look into those course learning outcomes, the first one was differentiate between continuous time and discrete time signals and systems, their types, properties just elaborated now, and to perform basic operation of signals. Basic operation of signals were simply even, odd, periodic, aperiodic, and transformations, that is time scaling, reversal, shifting. Second is time, perform time domain analysis of continuous time and discrete time LTI systems using convolution integral, convolution sum. What is impulse response? What is step response? How to find impulse response? How to find step response? We are done with these things. Now we are doing basically performing frequency domain analysis of signals and systems. We are done with Fourier series, and we are doing Fourier transform for both continuous and discrete time domains. And then in the last one, we say use Laplace transforms and Z transforms again for the analysis and characterization of signals and systems. Let's come back to the classwork today. So here the first property, sorry, properties पढ़ी है उसमें एक property है convolution property. Convolution property says that convolution in time domain is equal to multiplication in frequency domain. So if we say there are two signals x of t and h of t with their frequency domain functions as x of j omega and h of j omega. प्लीज जो representation है time domain में it's represented by a small letter x, in frequency domain it will be represented by capital letter. Time domain function is represented by t, and when we say continuous time Fourier transform, then it is represented by j omega. Okay. So again here x of j omega and h of j omega will be complex numbers. They will be represented into their magnitudes and phase. So here we say convolution property क्या है? Y of t equals to x of t convolved with h of t. Then its Fourier transform y of j omega will be simply x of j omega multiplied with h of j omega. So as we said that we use different properties or transforms to avoid complex mathematics. Means convolution is more complicated as compared to simple multiplication. So convolution property is one of those properties which simplifies our mathematical portion. So here we start with example. अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Proof of this property from book as an assignment. तो मैंने आज ये assignment अपलोड की हुई है. उसको सिंपली खोल लें, किताब खोलें, ये टॉपिक है उसमें कन्वोल्यूशन का. Proof is given, mathematically proved that how we say convolution in time domain equals to multiplication in frequency domain. ठीक है, तो किताब खोलें, उसमें सामने लिखा हुआ है. So here we simply start with a example.
ठीक है। और एग्जाम्पल क्या कहती है, अब इस एक एग्जाम्पल को अगर आप कंप्लीटली समझ लें तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 कवर होता है इस एक एग्जाम्पल में। ठीक है, शुड आई स्टार्ट विद दिस? मुझे सुन रहे हैं कि नहीं? जी सर, सुन रहे हैं। जितनी खामोशी होती है बाज़ औक़ात लगता है कि बिल्कुल कोई है ही नहीं, क्योंकि सामने तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओके, इट्स गुड। प्लीज़ इस एक एग्जांपल को प्रॉपर्ली समझ लें तो आप समझ लें कि आपका पूरे का पूरा कोर्स इसमें कवर होता है। ठीक है, जो कुछ पढ़े अभी तक, इनफैक्ट जो फ्यूचर में पढ़ेंगे वो भी इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। So simply here we say that LTI system with an impulse response h of जी, ये सॉल्व हुए हैं मैंने सारे। इस तरह से कर लूँ, पहले इसको देख लेना, अगर यहाँ पे कोई इशू हो तो फिर वहाँ पे कर देंगे। ठीक है, कोई इशू हो तो फिर देख लेते हैं। सिर्फ मुझे एक सेकेंड में मीटिंग कर। तो जिसको पहले यहाँ पे देख लें, अगर इसमें कोई इशू बनता है, होप सो नहीं बनेगा। मैंने काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश की है कि डिटेल में करूँ। आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो और ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। सो इट्स अ सॉल्व्ड एग्जांपल। एग्जाम्पल का ये पहला पार्ट है जो कि बुक में, उसके बाद इसी एग्जाम्पल को मैंने फर्दर एक्सटेंड किया हुआ है कि टू गो फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, so the first example is simply LTI system with impulse response h of t and input x of t is given. You are supposed to find the output of LTI system. So impulse response given as e raised power minus at u of t for a greater than 0. And input is given as e raised power minus bt u of t for b greater than 0, where a and b are any real values. Greater than 0 means positive. See? So it says find the system response with two conditions. When small a is not equal to b means यहाँ पे input और impulse response में जो a और b हैं equal नहीं है. And in the other case we say they are equal. And also we are given that use the transform pair e raised power minus at u of t का transform क्या 1 over a plus j omega with condition a is greater than 0. So use this transform pair. ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा, वहाँ पे आपने इस पेयर को यूज करना है। इनवर्स फाइंड करना है तो फिर भी आपने इसी पेयर को यूज करना है। So here we say using convolution property, so output of LTI system is always equal to input convolved with its impulse response. तो आप इसको डायरेक्टली भी उस फॉर्मूले से कर सकते हैं जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि हाउ टू कन्वॉल्व एनी टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, वहां से भी हो सकता है, बट हेयर वी से यूज द फोरियर transform. So using just convolution property, that y of t equals to x of t convolved with h of t, then y of j omega will be x of j omega multiplied with h of j omega. X of j omega क्या, using this transform pair, x of j omega will be 1 over b plus j omega and h of j omega will be 1 over a plus j omega. अब y of j omega आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, complex function. We are supposed to find y of a, and you have already studied in the previous course कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा हो, then we have to use the partial fraction expansion method.
So y of j omega is equation number 1. इसको partial fraction की form में लिखें तो we say it is capital A divided by A plus j omega plus capital B divided by B plus j omega. Comparing 1 and 2 and simplifying means 1 और 2 को compare करें और 1 के denominator से multiply कर दें दोनों sides को. So this results in capital A times B plus j omega plus B times A plus j omega which is equal to 1. इससे फाइंड कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन किस किस को याद है और रेफरेंस दूं मैथ्स की बुक वाला जिसको नहीं याद प्लीज एरविन क्राइजिक की जो आपने मैथ्स की बुक पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के कोर्स में उसमें एक अपेंडिक्स गिवन है आई डोंट नो अपेंडिक्स ए या बी है तो उसमें हर किस्म के पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशंस गिवन है यहाँ पे जो सिंपल यूज हो रहा है उसी को देख लें इसे a टाइम्स b प्लस जे ओमेगा प्लस b टाइम्स a प्लस जे ओमेगा इक्वल्स टू 1 तो इक्वेशन नंबर 1 से आप डिनोमिनेटर के रूट्स फाइंड करें तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है जे ओमेगा तो जे ओमेगा के दो रूट्स बनेंगे माइनस ए एंड माइनस बी नाउ हियर वी से टू फाइंड a put j omega equals to minus a in this equation number 3 so a into b minus a plus b into a minus a equals to 1 तो a minus a cancels out इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो a की वैल्यू आती है 1 over b minus a where capital A is constant and small a b's are any real values ठीक similarly to find b put j omega equals to minus b in 3 तो जब इसको b फाइंड करना है आप सिंप्लीफाई कर दें तो कैपिटल b की वैल्यू आएगी 1 over b a minus b तो अगर आप a और b को कंपैरिजन करना चाहें तो a 1 over b minus a है जबकि b 1 over a minus b है तो इससे माइनस कॉमन लें तो यू आर लेफ्ट विद minus 1 over b minus a which is equal to minus times capital A ठीक इक्वेशन नंबर 2 क्या थी कि इसको आपने इस पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो जो आपने कैपिटल A और B फाइंड किए सिर्फ उनकी वैल्यूज इंसर्ट कर दें so capital A equals to 1 over b minus a times 1 over a plus j omega minus 1 over b minus a 1 over b plus j omega तो अगर आप कॉमन ले लें 1 over b minus a you are left with 1 over a plus j omega minus 1 over b plus j omega अब आपने इसका इनवर्स लेना है ठीक है हमने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज ही इसलिए किया कि इनवर्स लेना है क्लियर उस इनवर्स की खातिर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करके हमने दोनों टर्म्स अलग अलग लिख दिए हैं which comes out to be 1 over a plus j omega minus 1 over b plus j omega. Now again use the same transform pair and linear the condition is greater than 0. So it is using this transform pair in steric. So 1 over b minus a into e raised to power minus at u of t minus e raised to the power minus bt u of t. इस क्वेश्चन में अभी तक किसी को कोई इशू हो पूछ लें एरविन क्राइजिक की बुक को बुक में ही देखा जी प्लीज़ अगर आप ये बुक को देख लें इसी बुक को दूसरी बुक में जाने की ज़रूरत ही नहीं है अपेंडिक्स है ए दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन तो सबसे पहले आप देख लें तो इसमें आपको इक्वेशन गिवन है एक्स है ठीक एंड देन इसमें आपको बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे एक्सपेंशंस ठीक
अपेंडिक्स ए इसकी खोलें, इसमें आपको सारे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशंस गिवन है एंड दे आर मोस्टली यूज्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी गिवन सिग्नल और सिस्टम। इस इक्वेशन में यहाँ तक क्लियर है इस एग्जांपल में? जी सर। Yes, sir. चलिए जी, Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू बी। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, a इक्वल्स टू b। तो अगर a इक्वल्स टू b हो जाए, h ऑफ t y ऑफ j ओमेगा इक्वल्स टू x ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, तो अभी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी अगर a और b इक्वल हो? then it will be either 1 over a plus j omega whole square or 1 over b plus j omega whole square, जो भी आप इक्वेशन लें। जब आपके पास इस किस्म के क्वेश्चंस होंगे तो हाउ टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड द इनवर्स देन वी अगेन टेक हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो दैट इज t टाइम्स function, that is j d by d omega x of j omega। सिमिलरली अगर फंक्शन y of t है तो t टाइम्स y of t का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, j टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, दैट इज y of j omega। सिमिलरली t टाइम्स z of t, j टाइम्स d by d omega z of j omega। किसी को याद है t स्क्वायर z of t का ट्रांसफॉर्म क्या था? जे स्क्वायर डेरिवेटिव लेना होगा। जो भी फंक्शन होगा, z of t है, y of t है, x of t है, f of t है, जो भी आप उसे नाम दें, ठीक है। जी सर। अगर आप t क्यूब का फाइंड करेंगे तो दैट विल बी j क्यूब इनटू द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन विद रेफरेंस टू ओमेगा। So here we say let us consider z of j omega is 1 over a plus j omega। अब z of j omega को मैं यहाँ से ले रहा हूँ other than this square, ठीक है, that is 1 over a plus j omega। इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव्स आपने पढ़े हुए हैं। सिंपली वी से दिस इज a plus j omega पावर -1, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, सो -1 into a plus j omega पावर -1 into derivative of the remaining part which is a plus j omega। So this is -1 divided by a plus j omega whole square multiplied by j, क्योंकि d by d omega of a plus j omega का डेरिवेटिव क्या आता है, j आता है। लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ a is any real constant, derivative j। So d by d omega z of j omega equals to minus j divided by a plus j omega whole square। So we say j times d by d omega 1 over a plus j omega किसकी, we say y of j omega equals to 1 over a plus j omega whole square। So using this property, तो 1 over a plus j omega whole square किसकी इक्वल आएगा, j times d by d omega into 1 over a plus j omega। ठीक, तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो ये क्या कहता है, t टाइम्स z of t का ट्रांसफॉर्म किया है j times d by d omega z of j omega, and we say that 1 over a plus j omega whole square equals to j इनवर्स क्या होगा। इंटरनेट क्या क्लियर नहीं आ रहा, सर रिपीट कर दें। आवाज नहीं आ रही। S to the power minus at u of t। So j times derivative of 1 over a plus j omega क्या आता है, t times e raised to the power minus at
u ऑफ टी। सो अगर आपके पास y ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा होल स्क्वायर, तो y ऑफ t क्या होगा, t e रेज़ टू द पावर माइनस a t u ऑफ t। इसमें भी सर लास्ट 2 स्टेप्स रिपीट करते हैं। हमने यहाँ पे देखें एजम्पशन क्या ली है, z ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा। अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड सिंप्लीफाई दैट, तो वी एंड अप विद माइनस जे डिवाइडेड बाय a प्लस जे ओमेगा होल स्क्वायर। माइनस जे को उस साइड पे ले जाएं, you are left with j times derivative of 1 over a plus j omega, which is equal to 1 over a plus j omega whole square। अब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या है, 1 over a plus j omega whole square। इसको हम क्या लिख रहे हैं, we write it like j times d by d omega 1 over a plus j omega which is equal to 1 over a plus j omega whole square। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या है, t times any function का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, j times derivative of that function with respect to omega and x of j omega क्या है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सिमिलरली इसका इनवर्स क्या बनेगा, इट विल बी t times inverse of the function, तो t times the Fourier inverse of x of j omega। तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, 1 over a plus j omega है। j times derivative of this frequency domain function, इसका inverse क्या बनता है, this is by using differentiation property, it is t times the Fourier inverse of this function 1 over a plus j omega। So this will be t times e raised to the power minus a t u of t। ठीक, then y of t will be equal to t e raised power minus a t u of t with the condition is greater than 0। अब ये प्रॉपर्टी आपने कब यूज करनी होगी, किसी भी ट्रांसफर करेंगे, इनको कौन जी सा वाला इक्वल जी, इक्वल होंगे जब रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जे ओमेगा डबल रूट्स हैं, जे ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ए और माइनस ए। ठीक है, आगे जाके चैप्टर नंबर 9, 10 में चीज़ें और क्लियर होंगी कि डबल रूट्स का विद रेफरेंस टू सिस्ट रूट्स या सेम इक्वल रूट्स, देन यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में क्या हो कि 1 और a प्लस जे ओमेगा होल क्यूब आए आपके पास, फिर आपने इसी प्रॉपर्टी को 2 दफ़ा यूज करना है। ठीक है, होल स्क्वायर। नहीं बाय पार्ट्स क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। पार्ट्स क्या इंटीग्रेशन करनी है, डेरिवेटिव लेना है। बाय पार्ट्स कह रही हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं इसको। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको एक्सपेंड और कैसे करेंगे, क्या एक्सपेंशन होगी इसकी, डिनोमिनेटर में तो फिर स्क्वायर आएगा, उस स्क्वायर का इनवर्स कैसे लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट सी बात ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जब भी इस यहाँ पे पावर 1 से ज़्यादा है, इंटीजर वैल्यू 2 3 4 5 6 जो भी नंबर हो, फिर इसका ट्रांसफॉर्म लेना मुश्किल है। बाय पार्ट से अगर आप करते हैं तो डिनोमिनेटर में फिर या तो हो कि आपके पास कोई ऐसा मेथड है कि आप स्क्वायर के टर्म को 1 पे ले आए, देन यू कैन डू दैट। लेकिन अगर इसको आप बाय पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन भी करें तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर फिर भी रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। सो शॉर्ट तरीका क्या है, इफ़ यू
से कि आपके पास जो भी ट्रांसफॉर्म गिवन है आपने फाइंड किया और उसमें आपके पास डिनोमिनेटर में डबल ट्रिपल रूट्स आए हैं, then you have to use this property. This will save time and this is more simpler as compared to all other techniques, चाहे जो भी टेक्निक आप यूज करेंगे. So shortly यहाँ पे स्क्वायर है, अगर ये क्यूब हो जाए तो you have to reuse this property. ठीक है, कि स्क्वायर कंसिडर करें, उसका डेरिवेटिव लें तो वो क्यूब बन जाएगा. Then that will become t square e raised power minus 8t. इन तीनों का कंपैरिजन है. अगर आपके पास सर थोड़ा सा और जूम करें. तो अगर आप पहला देख लें तो फंक्शन क्या गिवन है टाइम डोमेन में, इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल समेशन ए के रेस पर जे के ओमेगा नॉट टी. तो ये टाइम डोमेन पीरियोडिक सिग्नल है एक्स ऑफ टी. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, 2 पाई समेशन ए केस डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, और इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, ए केस हैं. मतलब एक आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है और दूसरा आपको अब ई रेस पर जे ओमेगा नॉट टी इज अगेन अ पीरियोडिक सिग्नल. तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या है, 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, a1 is equal to 1 and then all the other coefficients are 0. Similarly cos of omega naught t periodic signal है, इसका ट्रांसफॉर्म क्या है, pi times delta of omega minus omega naught plus delta of omega plus omega naught. कोफिशिएंट Similarly, sin of omega naught t का क्या होगा, pi by j delta of omega naught minus delta of omega plus omega naught, with a1 is equal to minus times a minus 1, which is equal to 1 over 2j, and a k's are 0 otherwise. अब x of t अगर कांस्टेंट सिग्नल है, ठीक है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है. अब जनरली इक्वेशन ये यूज हो रही है पीरियोडिसिटी वाली, 2 टाइम्स समेशन ए केस डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के नॉट. तो यहाँ पे सिर्फ कौन से कोफिशिएंट्स डिफाइंड है फॉर अ कांस्टेंट सिग्नल, a naught is equal to 1 and all the other coefficients are 0. ठीक, and this is how Fourier series जाएगा. फिर एक पीरियोडिक स्क्वायर वेव कंसीडर हुई थी, x of t equals to 1 for t less than t1 and 0 for t between t1 and t by 2. And also we say x of t plus t is equal to x of t because we say it's periodic with a period t. कोफिशिएंट्स के केस में आप ये काम कर चुके हैं. फिर एक एग्जांपल है जो हमने छोड़ दी थी, दैट इज पीरियोडिक ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस. इसको प्लीज खुद देख लें, सॉल्व एग्जांपल है. पीरियोडिक ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस इज गिवन as summation n from minus infinity to plus infinity delta of t minus nt. इसका ट्रांसफॉर्म आता है 2 पाई बाई टी समेशन डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस 2 पाई के डिवाइड बाई टी एंड ए केस आर 1 ओवर टी. अब अगर आपके पास ए पीरियोडिक स्क्वायर पल्स है या रेक्टेंगुलर पल्स, तो उसका ट्रांसफॉर्म क्या है, 2 साइन ऑफ ओमेगा टी 1 डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय पाई टी. इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x of j omega is 1 for omega less than omega and 0 for omega greater than omega. टेबल में जो आपको ट्रांसफॉर्म पेयर्स गिवन है ये आपको याद होने चाहिए. ठीक है, सिमिलरली अगर डेल्टा ऑफ टी फंक्शन है टाइम डोमेन, तो इसका इनवर्स क्या है, ट्रांसफॉर्म क्या है 1. टाइम डोमेन फंक्शन u ऑफ टी है, स्टेप फंक्शन, इसका सिमिलरली डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट का minus a t u of t with a real of a greater than 0, its transform is 1 over a plus j omega. t times e raised power minus a t u of t real of a greater than 0, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 over a plus j omega whole square.
t power n minus 1 divided by n minus 1 factorial e raised to the power minus at u of t। ठीक, तो अगर आप n को 2 लें तो वही इक्वेशन है जो भी हमने फाइंड u of t। if t n equals to 3 तो फिर ये क्या बनेगा, t square divided by 2 factorial which is इस टेबल में जितने भी फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं, फंक्शन और उसका ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म और उसका इनवर्स, ये आपको फाइंड करना आने चाहिए मैथमेटिकली, एंड एट द सेम टाइम you have to memorize all these transform pairs। ठीक है, so first question that arises in this, is this system memoryless? जी memoryless है या नहीं, सामने तो लिखा हुआ है नो, क्यों नो है, memoryless क्यों है? How to verify this thing? सर यूनिट स्टेप फंक्शन आ रहा है साथ। नहीं, कोई और रीजन। Why we say this system is memoryless? नीचे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सारा कुछ सॉल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन चाह रहा हूँ, मैंने देख ली, मैं पेपर में पूछूंगा आपसे, ठीक है। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में की हुई हैं। प्लीज ये एक और एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 4.7 टॉपिक सिस्टम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लीनियर कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो कौन से सिस्टम्स हैं? जनरली वी से व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशंस। Generally we say in this course RLC circuits are represented by the differential equations। ठीक है, so generally we say constant coefficient heterogeneous differential equations are used for the representation of, so mathematical form पहले भी हम कर चुके हैं एक दफ़ा। summation k from 0 to n a k kth derivative of y of t equals to summation b kth derivative of x of t, where a k's and b k's are any real constants। Now we say take transform of this equation। तो यहाँ पे y of t का फंक्शन क्या है? सिर्फ ये डेरिवेटिव है। तो we say summation k from 0 to n a k's Fourier transform of the kth derivative of y of t equals to summation b k's Fourier transform of the kth derivative of x of t। अब हमने एक डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो इसका kth डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म x of j omega। Similarly, by using this property, so this equation can be rewritten as, ठीक है, summation k from 0 to n a k is j omega power k y of j omega is equal to summation b k is j omega power k x of j omega। So from the convolution property we know that y of t is equal, or we say summation k from 0 to n a k is j omega power k। तो y of j omega को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, right hand side is same b k is j omega power k x of j omega। x of j omega cancels out from both sides, h of j omega क्या आता है? y by x, or we say from this equation it is
summation k from 0 to m b case j omega power k divided by summation k from 0 to n a case j omega power k। ठीक है, तो आपके पास जनरली फ्रिक्वेंसी रिस्पांस क्या है जनरल इक्वेशन का, समेशन k फ्रॉम 0 टू m b केस j ओमेगा पावर k डिवाइडेड बाय k फ्रॉम 0 टू n a केस j ओमेगा पावर k। तो जनरली आपके पास फ्रिक्वेंसी रिस्पांस की इक्वेशन बनेगी, देन यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड द इनवर्स h ऑफ t। उसके लिए फिर आपने इस इक्वेशन पे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है। इस कोर्स में वी विल बी ओनली डीलिंग विद द सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, हम सेकेंड ऑर्डर से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो एक सॉल्व एग्जांपल है 4.25 एंड 4.26। मैं क्विकली जा रहा हूँ, फिर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लैब का सेशन होगा। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक गिवन है आपको, ठीक है, और वो क्या गिवन है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ t प्लस 4 टाइम्स derivative of y of t plus 3 times y of t equals to derivative of x of t. This is given. So it says that find using Fourier transform and its properties. Frequency response find करें इस system का, फिर उसका impulse response find करें, then for the given input e raised power minus t u of t find the output y of t, यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है, ठीक। So for input e raised power minus t u of t find y of t. Also verify the following properties of LTI system mathematically. Mathematically prove करके बताएं जो system represent हो रहा है इस differential equation से, is it memoryless, is it causal, is it stable, is it invertible? So we start with the first one using differentiation in time domain property. तो क्या है, x of t का transform x of j omega, तो डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, j ओमेगा टाइम्स x ऑफ j ओमेगा। सेकेंड डेरिवेटिव का क्या होगा, j ओमेगा होल स्क्वायर x ऑफ j ओमेगा। आपको ये इक्वेशन गिवन है, इस पूरी इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें। दिस विल बी j ओमेगा स्क्वायर y ऑफ j ओमेगा प्लस 4 टाइम्स j ओमेगा y ऑफ j ओमेगा प्लस 3 टाइम्स y ऑफ j ओमेगा इक्वल्स टू j ओमेगा x ऑफ j ओमेगा प्लस 2x ऑफ j ओमेगा। इक्वेशन पूरी यहाँ पे लिखिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इस इक्वेशंस में से आप y कॉमन ले लें लेफ्ट हैंड साइड से, सो यू लेफ्ट j ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 j ओमेगा प्लस 3, राइट हैंड साइड से x ऑफ j ओमेगा कॉमन लें, यू आर लेफ्ट विद j ओमेगा प्लस 2। नाउ वी से rearrange this equation for y by x, so y by x equals to h of j omega, that comes from convolution property, which is equal to j omega plus 2 divided by j omega square plus 4 j omega plus 3। तो यहाँ तक तो पहला पार्ट है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स h of j omega, h of j omega equals to j omega plus 2 divided by j omega square plus 4 j omega plus 3। अगर आपसे कहा जाता है कि इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस टाइप का है, मींस इट्स व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर, इज इट अ लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, कैसे फाइंड करेंगे? एनीवन? इसका बॉडी प्लॉट करेंगे। इसका बॉडी प्लॉट करेंगे, या डायरेक्टली भी आप इसको एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करने के लिए आप पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे मैथमेटिकली एंड देन फाइंड इट्स फेज इक्वेशन। मैग्नीट्यूड की इक्वेशन किस तरह फाइंड करते हैं? हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्वेशन? प्लीज इसको जब आप करेंगे तो आपने सिर्फ एक स्टेप करना होगा कि जे स्क्वायर को -1 इंसर्ट कर दें, ठीक, पहले जे स्क्वायर को -1 इंसर्ट करें and then use the property that magnitude square equals to a function multiplied with its conjugate, या magnitude किसके इक्वल होगा, इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करें इसके कॉन्जुगेट के साथ और फिर उसका स्क्वायर रूट लें, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग दैट एक्सप्रेशन जो आपको मिलेगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। फिर उसको अगर प्लॉट करना है तो पेपर पे प्लॉट करें या मैटलैब पे प्लॉट करें। मैटलैब पे आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली भी प्लॉट कर सकते हैं। इक्वेशन लिखें एंड देन से
plot absolute of this function. So that will directly give you the magnitude plot. ठीक है, and similarly phase plot. तो यहाँ पे फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं है कि how to find its magnitude and phase. इसका सेकंड पार्ट क्या था? फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स h of t. तो अब ये आपको गिवन फंक्शन है h of j omega plus 2 divided by j omega square plus 4 j omega plus 3. So to denominator का रूट डिग्री बड़ी है न्यूमरेटर से. अगेन यूज पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले आपने डिनोमिनेटर के रूट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, j omega plus 2 divided by j omega square plus j omega plus 3 j omega plus 3. इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है रूट्स की फॉर्म में. न्यूमरेटर j omega plus 2, डिनोमिनेटर j omega plus 1 into j omega plus 3. Then use partial fraction जो भी इससे पहले किया है, that gives you equation number 2. Compare 1 and 2 and simplify. डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को उसको डिनोमिनेटर से. j omega plus 2 equals to this equation number 3. Now the roots are j omega equals to minus 3 and minus 1. Put j omega equals to minus 3 in equation 3. तो b equals to 1 over 2. ठीक है, सिमिलरली a को फाइंड करना है आपने, तो पुट j omega equals to minus 1. So a equals to 1 over 2. तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से h और j omega क्या बन गया? 1 over 2 divided by j omega plus 1 plus 1 over 2 divided by j omega plus 3. Now use the transform pair. e raised to power minus 8 u of t का ट्रांसफॉर्म क्या है? 1 over a plus j omega. So by comparison फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू 1 है और सेकंड पार्ट में a की वैल्यू 3 है. So h of t equals to 1 over 2 e raised to power minus t u of t plus 1 over 2 e raised to power minus 3 u of t. ये दूसरे पार्ट का आंसर है. ठीक, थर्ड पार्ट क्या कहता है कि इनपुट गिवन है e raised to power minus t u of t, then find output. So again output is either equal to convolution in time domain or multiplication in frequency domain. तो अगर आपसे कहा जाता है कि यूज फोरियर ट्रांसफॉर्म टू फाइंड आउटपुट, देन यू हैव टू अडॉप्ट दिस अप्रोच. लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहा जाता कि जी जो मर्जी करें, फिर आपकी मर्जी है कन्वोल्यूशन से करें या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म से करें. So now we say x of t multiply convolved with h of t is x of j omega multiplied with h of j omega. x of t given है e raised to power minus t u of t, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1 over a j omega plus 1 multiplied with the Fourier transform of h of t जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं इस इक्वेशन में. 1 over 2 divided by j omega plus 1 plus 1 by 2 j omega plus 3. वो वैल्यू यहाँ पे डाल दें, फिर जो बाहर वाला टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें इंटरनल टर्म्स को. So this is 1 over 2 multiplied by 1 over j omega plus 1 whole square plus 1 by 2 into 1 over j omega plus 1 into 1 over j omega plus 3. अगेन जो भी दो एग्जांपल्स की हैं, पहले में डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट में. इसका ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा? इनवर्स 1 over 2 t e raised to power minus t u of t. और दूसरे पार्ट में इसको दोबारा पार्शियल फ्रैक्शन से एक्सपेंड करें जो सेकंड पार्ट है, 1 over j omega plus 1 into 1 over j omega plus 3. ठीक है, तो अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आप एक्सपेंड करेंगे, कैपिटल ए और बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो भी आपको एक 1/2 मिलेगी. प्लीज़ इसको नोट कर लें, बुक के साथ कंपेयर भी कर लें. यहाँ पे माइनस साइन है. ठीक है, दिस इज minus 1/2 into 1 over j omega plus 3. Further simplify this, the end result is 1/2 t e raised to power minus t u of t plus 1 over 4 e raised to power minus t u of t plus 1 over 4 e raised to power minus 3t u of t. So अगर आपको इनपुट गिवन है, impulse response given है, then you can easily find the system response y of t. अब बाकी काम आसान है. इसी में आपने क्या फाइंड करना था? Find whether the given system is with memory or without memory. तो सिस्टम का ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है जो आपने पार्ट 2 में फाइंड किया है. h of t is 1/2 e raised to power minus t u of t plus 1/2 e raised to power minus 3t u of t. अब वेरीफाई सिस्टम प्रॉपर्टी. सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? मेमोरी लेस. So if you remember from chapter number 2, the system is said to be memoryless LTI system
if impulse response of the system h of t equals to k times delta of t, अगर इस किस्म का impulse response होगा तो system is memoryless. अब जो given impulse response है इक्वेशन स्टार में, इसको 1 के साथ कंपेयर करें, क्या ये कोई इक्वेशन कंडीशन नंबर 1 को जस्टिफाई कर रहे कि नहीं? नो सर। नहीं कर रहा, ठीक है। मीन्स कि एच ऑफ टी में आपके पास सिर्फ एक इम्पल्स होनी चाहिए इन केस ऑफ मेमोरी लेस, जबकि यहाँ पे आपके पास पूरे को पूरा इम्पल्स रिस्पॉन्स डिफाइंड है फ्रॉम 0 to infinity to the given curve. So we say as given h of t does not specify equation number 1 or condition number 1, so the system is with memory. ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? कॉजेलिटी. For causal LTI systems, h of t should be 0 for t less than 0. We say equation number 2. ठीक है, condition number 2. Again compare equation 2 and star. तो क्या equation star जो है वो equation condition number 2 को justify कर रहे कि नहीं? जी सर कर रही है। कर रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर equation star में t की वैल्यूज -1 डाल दें रिजल्ट 0 आएगा because of u of t. t की वैल्यू -2 डालें फिर भी 0 आएगा. So we say equation star justifies condition number 2. So the given system is causal. कौन सा सिस्टम? सिस्टम कौन सा है इसका? इस इम्पल्स रिस्पॉन्स का सिस्टम कौन सा वाला है? सर वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या? स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन थी? For stability of LTI system, we say integral h of t dt is less than infinity. अगर ये कंडीशन जस्टिफाई होगी, means h of t is bounded signal, then the system will be stable. तो अब इसकी बाउंडनेस को कैसे चेक करते हैं? तो we say integral h of t dt should be less than infinity. यहाँ पे h of t की वैल्यू इंसर्ट कर दें. So वो क्या थी? 1/2 e raised power minus 2e u of t plus 1/2 e raised power minus 3t u of t dt less than infinity. इस इंटेग्रल को सॉल्व करें. तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को खुद सॉल्व करते जाएं, अलग कर दें इंटेग्रल को, so e raised power minus t with the limits from 0 to infinity and e raised power minus 3 integration with the limits from 0 to infinity. तो अगर आप इसको सॉल्व करते जाएं -1/2 and so on, so we say एंड में क्या है? इंटेग्रल h of t with the limits from -infinity to +infinity dt. This comes out to be 4/6, which is less than infinity. So we say this system is a stable system. ठीक, इसमें एक इन्वर्टेबल आई थिंक गलती से ऊपर पेस्ट हुआ है. इन्वर्टेबल यहाँ पे नहीं है, मैंने किया तो था, प्लीज ये ठीक. आपको ये जो क्वेश्चन था, इज दिस इन्वर्टेबल, ठीक, जो पहली एग्जांपल की है 4.19. पहला क्वेश्चन था मेमोरी लेस है, नहीं है, कॉजल है, स्टेबल है, यस. हाउ टू फाइंड वेदर द सिस्टम इज इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल. प्लीज ये एक चीज देख लें, देन वी गो. एक 4.19 से इन्वर्टेबल सिस्टम को की डेफिनेशन क्या थी कि अगर आप उस सिस्टम के साथ एक और सिस्टम सीरीज में कनेक्ट करें, देन द आउटपुट शुड बी इक्वल टू द सेम इनपुट, देन वी से सिस्टम इज स्टेबल. तो अगर आप इसके साथ एक और सिस्टम कनेक्ट कर रहे हैं, सिस्टम 1 विद इम्पल्स रिस्पांस h of t, सिस्टम 2 विद इम्पल्स रिस्पांस से h i of t, आउटपुट क्या होगी? इनपुट कन्वर्ट विद h of t कन्वर्ट विद h i of t. तो यहाँ पे अगर h of t convert with hi of t equals to the impulse function, then we say the system is stable, otherwise invertible. So हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Take Fourier transform of this equation. So hi of j omega multiplied with h of j omega will be equal to 1. h inverse of j omega क्या होगा? 1 over h of j omega with a greater than 0. So hi of j omega equals to a plus j omega. अगर
अगर आप इन दोनों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई कर दें, h of j omega क्या है 1 over a plus j omega, and h I of j omega is a plus j omega. They cancel out and you are left with 1. But here we say you have to mathematically verify in time domain. अगर आप इन दोनों को टाइम डोमेन में कन्वॉल्व करें तो आउटपुट शुड बी इक्वल टू द इम्पल्स फंक्शन, देन वी से सिस्टम इज इन्वर्टेबल. क्योंकि अगर इस इक्वेशन नंबर 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, then do remember the system will be non invertible. ठीक है, कि इस इक्वेशन से तो आपको इन्वर्स मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लेकिन अगर उस ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिस्टम विल बी नॉन इन्वर्टेबल. Clear? So here if we say if inverse of hi of j omega exists, then the system is invertible, and if the inverse of hi of j omega does not exist, then the system is non-invertible. Now to verify this thing, हम क्या कर रहे हैं कि जो आपने इन्वर्स फाइंड की है, सॉरी इन्वर्स सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड किया है, उसका टाइम इन्वर्स फाइंड करें. अगर वो आपको मिलता है तो सिस्टम इज इन्वर्टेबल. सो हाउ टू फाइंड दिस थिंग, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट ए, तो ए का ट्रांसफॉर्म क्या होगा. so, उसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि डेल्टा ऑफ टी अगर इम्पल्स सिग्नल है उसका ट्रांसफॉर्म क्या है 1 है, तो 1 का इनवर्स क्या होगा डेल्टा ऑफ टी. तो अगर मैं 1 को स्केल कर दूं विद एनी कांस्टेंट तो फिर a का इनवर्स क्या बनेगा, a टाइम्स डेल्टा ऑफ टी. दूसरा पार्ट आपके पास इक्वेशन 1 में क्या है j ओमेगा, तो j ओमेगा टाइम्स 1. तो यहाँ पे यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट्स द डेरिवेटिव ऑफ द impulse function, that is d by dt delta of t. तो j ओमेगा का इनवर्स क्या है d by dt delta of t which exists, और a का इनवर्स क्या है a times delta of t. So now we can write hi of j omega in the time domain as hi of t. hi of t क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 says this is a times delta of t plus d by dt delta of t. See? Now to verify invertibility we say h of t convolved with hi of t. This must result in the impulse function, then the system is invertible. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं e raised power minus at u of t convolved with impulse response of the inverse system, which is a times delta of t plus d by dt of delta of t. Now here we use the distributive property of convolution, which comes out to be e raised power minus at u of t convolved with a times delta of t plus e raised power minus at u of t convolved with d by dt of delta of t. अब यहाँ पे ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. चैप्टर नंबर 2 में था टॉपिक 2.5.3. If we say output is equal to the derivative of input, इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा. प्लीज सब्जेक्ट टॉपिक 2.5 था सिंगुलैरिटी फंक्शंस के नाम से, उसको बुक को पढ़ लें प्रॉपरली, कोई मसला हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लें, otherwise we take it from there. If output is equal to the derivative of input, इस किस्म के सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है. तो इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन्स x को रिप्लेस कर दें डेल्टा से और y को रिप्लेस कर दें h से, तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, h of t is d by dt delta of t. Now we say LTI system output is input convolved with impulse response. So x of t convolved with d by dt delta of t, ये किसके इक्वल है, this is d by dt x of t. तो यहाँ से बेसिकली आप एक प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं कि d by dt of x of t equals to x of t convolved with the derivative of the impulse function. यहाँ से एक बेसिक डेफिनेशन बनती है impulse functions की कि अगर आप डेरिवेटिव ऑफ impulse function को कन्वॉल्व करें किसी भी फंक्शन से तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. इस बुक में पढ़ लें थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा. Now using this property here, h of t convolved with h of t will be
a e raised power minus at u of t कन्वॉल्व विद a टाइम्स डेल्टा ऑफ t। तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, किसी भी फंक्शन को इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करें तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सेम फंक्शन, so which results in a e raised power minus at u of t plus जी बस जा रहे हैं एक स्टेप आखिरी देखने, ठीक है। सो a e raised power minus at u of t प्लस अब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे इस बॉक्स में लिखी हुई है दैट डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी कन्वर्ट विद द डेरिवेटिव ऑफ द इम्पल्स फंक्शन। तो यहाँ पे पास आपके पास फंक्शन क्या है, ई रेज़ पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। अगर आप इसको कन्वॉल्व करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्पल्स तो रिजल्टेंट विद द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सो वी से प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। तो यहाँ पे चेन रूल को यूज करें तो राइट हैंड साइड इज ए रेज़ पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी प्लस by using chain rule derivative में function e raised power minus at multiplied with the derivative of u of t which is delta of t plus u of t multiplied with the derivative of the second function which is minus a e raised power minus at। इसको simplify करें तो a e raised power minus at u of t plus a e raised power minus at delta of t minus a e raised power minus at u of t। तो ये तो terms cancel हो जाएंगे, you are left with e raised power minus at delta of t which is equal to 1 कब, जब t equals to 0 and it is 0 otherwise, which is basically the impulse function. So we say h of t convolved with hi of t equals to delta of t. We call this thing as, so we say that in this particular case property is proved that h of t convolved with hi of t equals to delta of t. So if this is proved, so we can say that the given system is invertible। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो भी तो प्लीज इसको दोबारा देख लेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। तो अब चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ दो प्रॉपर्टीज रहती हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डुअलिटी, और जो भी टॉपिक पढ़ा है इसी से रिलेटेड है। लैब नंबर जो भी है, कितने बजे वापस आना है, 2:30 बजे, 2 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। प्लीज सिर्फ इसमें एक देख लें, लैब नंबर 7 है, ठीक है। तो इसको अभी 2:30 बजे प्लीज वापस आ जाएं, वी विल रीस्टार्ट लैब के साथ, ठीक है। जो भी फिर क्वेश्चंस होंगे लैब में क्लियर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज एंड बी बैक एट